Hello everyone. Today we're going to learn about fractions. Class 6 NCERT का जो चैप्टर है फ्रैक्शन हम उसके बारे में आज हम सीखते हैं। तो फ्रैक्शंस बिफोर स्टार्टिंग फ्रैक्शन हमारे कुछ बेसिक्स हैं फ्रैक्शन के जो हमें लर्न होने चाहिए। तो सबसे पहले वो देखते हैं फ्रैक्शन क्या है। सपोज एक सर्कल है मेरे पास और फॉर एग्जांपल अ रोटी और अ चपाती और अ पिज्जा, आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। अगर मैं उसको बराबर पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, सो ईच वन ऑफ देम इज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के लिए एक होल होता है। होल इज this in this case this is a whole circle. Now I have divided this whole into two equal parts. So if I shade one part of it, my fraction is 1 out of 2. ओके, फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है एंड एक डिनोमिनेटर होता है। n इज न्यूमरेटर एंड d इज डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर डिनोट्स फॉर टोटल पार्ट्स, लाइक यहाँ पे इसमें मैंने 2 पार्ट्स किए हैं तो डिनोमिनेटर इज 2 and numerator in this case is 1 because I have shaded one part of it. Suppose the question comes, Mary has a pizza and it was divided into 2 equal parts and Mary ate one of them. So what is the fraction she ate? So हम उसको कैसे लिखेंगे कि मैरी के पास एक पिज्जा था, उसने 2 equal parts में डिवाइड किया। 2 equal parts means the denominator will be 2 and she ate one of them, so I shaded one of it and my numerator is 1. So Mary ate 1/2 of the pizza. 1/2, 1/2, 1/2, आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। सो जरूरी नहीं है आपका जो फ्रैक्शन है वो एक सर्कल में हो। फ्रैक्शन कैन बी डन। एक स्क्वायर है, इसको मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया या 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। द कंडीशन इज द पार्ट शुड बी सेम। ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट एंड ये पार्ट ये सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो ये हमारी फ्रैक्शन नहीं है। अगर मैं इस स्क्वायर को ऐसे में डिवाइड करूं लाइक दिस, these are not equal parts, so this whole square is not divided into 4 equal parts, so it would not be considered as fraction. ओके, फ्रैक्शन का एक बेसिक रूल ये है कि जो भी हमारी फिगर है या जो भी हमारी चीज है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होनी चाहिए। ओके, नाउ न्यूमरेटर इज क्लियर। Numerator is the parts which we are taking and the denominator is the total number of parts. Okay, so this is the basic about the fraction. So इसमें आपको ये बताना है कि how many parts of a whole. Like if I ask you 2-3 questions like this, you can pause the video and answer the following. Very easy, you must have learned in your previous grade. What is the fraction of this? Again, this is a rectangle. I have divided into these many parts. I'm not going to tell the parts. And if I have shaded 3 of it, what would be the fraction of these two? So imagine these are the equal number of parts. So pause the video and try to answer yourself. I'll be back in 1 minute. Okay. Absolutely correct you are. See, first we need to figure out the denominator. So denominator in this case is 4 and the numerator, the shaded part, is 1. And like the bottom one, we need to figure out the denominator. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 parts, and I have shaded 3 parts of it. So this is called the fraction is 3/6. Okay. After this, just we have learned about the numerators and denominators. We must learn about how fractions will be visualized on number line. Okay. For example, this is a number line. This is a number line or a line segment, whatever you say. If I divided this one in 2 equal parts, this is suppose 1 and this is second part, and I have highlighted this one. So what would be the fraction? It would be again these
total parts are 2 and the shaded part is 1. So my fraction is gonna be 1 by 2 or half, 1 half. Again, I'm taking a number line. I just divided into few parts. Now pause the video and tell me the answer. How many total parts? Total parts mean the denominator. And what would be the shaded part if I shade this one? So I'm happy with your answers, right? This is divided into 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 equal parts. So the denominator is 7 and I have shaded 2 out of it. So it is 2 7. So my fraction is 2 7. Now going further, let us know what are proper fraction, improper fraction, and mixed fraction. Okay, what is proper fraction? Proper fraction, the fraction like this, 1 by 3, 2 by 4, 5 by 6, 7 by 8 are called proper fractions because its numerator is less than denominator. And why it is called proper fraction? Because अगर मैं इनको विजुलाइज करना चाहूँ तो आई कैन इजीली लाइक अ सर्कल मैंने ड्रॉ किया, उसको मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया एंड 1 पार्ट में शेड किया. आई कैन विजुलाइज, मुझे कुछ एक्स्ट्रा वो नहीं करना पड़ रहा है एफर्ट. आई कैन विजुलाइज. नाउ अ सर्कल लिया, टोटल पार्ट्स वर 4, मैंने उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया एंड आई शेडेड 2 पार्ट्स ऑफ इट. सो दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. Proper fractions are those fractions whose numerator n is less than denominator. Denominator will always be greater in proper fraction. And the thing which is opposite to that is improper fraction. What do you mean by improper fraction and how will you visualize improper fraction? Let us check. Now suppose my one fraction is 7 upon 4. One fraction is 7 upon 4. Now if I tell you to make out कैसे इसको visualize करना है, कैसे इसका shaded part हमने denote करने हैं, तो आप इसको कैसे करेंगे? See, the denominator is 4, so the object should be in 4 equal parts. ठीक है? अब मैं 4 equal parts में मेरा object होगा क्योंकि denominator 4 है. डिनोमिनेटर का क्या मतलब होता है? डिनोमिनेटर का मतलब होता है टोटल पार्ट्स. तो मेरा जो भी ऑब्जेक्ट है जिसका मेरे को फ्रैक्शन निकालना है दैट इज 7 by 4. इट इज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. अब ये तो मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में 4 में 7 तो वो कर नहीं सकती शेड, तो मैंने 4 कर दिया, 4 शेड कर दिया. बट मेरे को तो टोटल 7 शेड करना है ना, तो मैंने एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया. ओके, एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया. 4 यहाँ शेड थे, 5, 6 and 7 I shaded them. So what happened is my total shaded part are complete. So I needed to shade 7 parts out of 4 parts. So what I did is एक सर्कल मैंने और ड्रॉ किया जिसके 4 इक्वल पार्ट्स किए. अभी मैंने उसको वो किया, शेड किया, टोटल 7. So let me count the shaded parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So total shaded parts are 7 out of the total shaded part are 7 and the total parts were 4. So my fraction is 7 by 4 and this is type of fraction is called improper fraction. In improper fraction, my numerator would be greater than denominator always. मेरा जो न्यूमरेटर है हमेशा ही ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से. अब जो हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं एंड मिक्स फ्रैक्शन वी चेंज टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, तो अभी मेरे को ये चेक करना है कि मेरा कंसेप्ट यहाँ से मिक्स फ्रैक्शन पे कैसे जा रहा है. व्हाट इज मिक्स फ्रैक्शन? मिक्स फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन विच इज रिटन लाइक 1 3 by 4 फॉर्मेट, ऐसे लिखा जाता है ना, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं. मिक्स ये होल है और 3 4.
See, the same fraction 7/4 can be written as 1 3/4. How? We have just seen that मैंने यहाँ पे एक सर्कल लिया, इसके 4 पार्ट टोटल किया एंड मैंने इसके 4 पार्ट शेड कर दिया. मेरे को टोटल 7 शेड करना था, सो मैंने इसके 4 पार्ट शेड किया. देन इसके बाद मैंने एक और सर्कल बनाया क्योंकि मेरे 7 के 7 पार्ट शेड नहीं हुए थे. ओके, सो मैंने क्या किया, मैंने 4 5 6 7 3 पार्ट्स इसके भी शेड कर दिए, तो मेरा 7/4 फ्रैक्शन विजुअलाइज हो गया. अभी ये चीज ही मिक्स फ्रैक्शन में मैं कैसे लिखूंगी? सी यू नो 4 out of 4 parts are shaded. 4/4 और ये फ्रैक्शन हो गई 3/4. डन. सो 4/4 4 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है? ये तो एक होल है ना जो पूरा शेड हो गया है. होल, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि फ्रैक्शन से कहां से स्टार्ट होता है? होल होता है और उसके हम इक्वल पार्ट्स करते हैं. ये होल है, हमने इसके इक्वल पार्ट्स किए और मैंने चारों के चारों क्योंकि इसमें शेड किए, तो 4/4 4 डिवाइडेड बाय 4 इज 1. Okay, and 3/4 is the shaded part of the next fraction. This is 1 whole and 3/4 इसका शेड हुआ. So 1 3/4 इसकी improper form हुआ. Understood? 1 3/4 is an improper fraction of 7/4. Now, अगर मैं बड़ा फ्रैक्शन आता है मेरा, तो मैं ऐसे विजुलाइज करके तो मैं कर नहीं सकती, तो मेरे पास क्या मेथड है इस 7/4 को चेंज करने में मिक्स फॉर्म में 7/4. ओके, व्हाट आई नीड टू डू इज मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड पे जाऊंगी. दिस आई वुड लाइक राइट इट डिविडेंड, दिस इज डिवाइजर. सो 4 की टेबल याद करेंगे. 4 times 1 is 4, 4 times 2 is 8. सो हमारा 4 1s are 4, माइनस करेंगे 7 minus 4 3. So what we do is we start from here. सबसे पहले ये जो क्वेश्चन आएगा वो बीच में लिखेंगे, मिडल. 3 is remainder हम लिखेंगे ऊपर. Denominator will be there. So हम ऐसे चलेंगे clockwise. घड़ी ऐसे चलती है ना, घड़ी की सुई यहाँ से चलना शुरू करती है, यहाँ पे आती है, यहाँ खत्म हो जाती है, तो हमें ऐसे चलना है. एंड हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी आप इम्प्रॉपर से मिक्स में चेंज कर रहे हो कि आपका डिनोमिनेटर, आप कभी ये सोचो कि ये पहले लिखना है, ये पहले लिखना है, ये पहले लिखना, कंफ्यूज नहीं होना है. आप ये सोचो ये सीरीज में जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, और ये सबसे एंड में हमारा ये डिनोमिनेटर से आप चेक कर लीजिए, डिनोमिनेटर विल नॉट चेंज. इम्प्रॉपर से मिक्स करने में या मिक्स से इम्प्रॉपर करने में डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं होगा. ठीक है, हमारा ये अब मैंने सीखा इम्प्रॉपर से मिक्स फॉर्म में कैसे चेंज करना. नाउ मेरे पास एक अलग क्वेश्चन है अभी कि मेरे को मिक्स दिया हुआ है 2 2/3. अब हाउ विल आई चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? तो पहले मैं इस फ्रैक्शन को विजुलाइज कर लेती हूँ. ओके, नाउ मेरे पास जो टोटल पार्ट्स हैं वो 3 हैं. मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, उसमें मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया और 2 है ना मेरे पास, तो मतलब ऐसे मेरे पास 2 सर्कल पूरे शेडेड है. एक शेडेड हो गया, एक और सर्कल लिया, 3 पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि एक ये सर्कल शेडेड है और दूसरा एक और चाहिए, मुझे 2 चाहिए, तो एक और मैंने शेड कर दिया. एंड थर्ड सर्कल लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे को ये फ्रैक्शन की रिप्रेजेंट करनी है. अगेन टेकन अ सर्कल, डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड आई हैव शेडेड 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3. सो ये मेरा 1 हो गया, प्लस ये मेरा 1 हो गया, होल 1 होल, एंड दिस इज 2/3. ठीक है, तो मेरा फ्रैक्शन क्या हो गया 2 2/3. ठीक है, अगर मैं इसी को इम्प्रॉपर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूं? इम्प्रॉपर फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये 3/3 शेडेड है, 3/3, ये भी 3/3 शेडेड है, प्लस 3/3, एंड ये कितना मेरा शेडेड पार्ट है 2 आउट ऑफ 3. ठीक है, जब भी हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, हम फ्रैक्शंस को ऐड करने के टाइम ये देखते हैं कि वो लाइक फ्रैक्शन मतलब जिसके डिनोमिनेटर सेम है. अब इनके डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे. सो 3 + 3 + 2, 3 + 3 is 6, 6 7 8/3 मेरा आंसर आएगा. ठीक है, अभी मैं दूसरी तरीके से, ये तो मैंने विजुअलाइजेशन से किया, अब मैं दूसरी तरीके से इसको कैसे वेरीफाई करूंगी कि 8/3, मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि मेरा 8/3 आंसर आ रहा है. मैं चेक करती हूँ कि मेरे दूसरे मेथड से मेरा आंसर 8/3 आ रहा है या नहीं आ रहा. सो व्हाट वी डू, 2 2/3, 2
2/3 मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी और इसमें ये ऐड करूंगी। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है और यहाँ प्लस करना है। पहले 3 2 किया 6 आया, 6 में 2 ऐड किया 8 आया, डिनोमिनेटर मेरा सेम रहा, 8/3 I got as my answer. So same answer I got when I was doing the visualization of the fraction. Okay, तो हमारे लिए आज के लिए इतना ही सीखना है। हमने क्या क्या सीखा एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। हमने सीखा फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन इज अ होल, एक होल है, उसको हम डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में, तो जो ईच पार्ट है इज माय फ्रैक्शन। दिस इज अ होल, नॉट रियली अ सर्कल। एक सर्कल भी हो सकता है, एक स्क्वायर भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इवन आप घर में ऐसी कोई चीजें देखते हैं जो सिमेट्रिकल हैं, आप उसको भी ले सकते हो। आप एक डस्टर ले सकते हो, ये डस्टर को मैं 2 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दूं तो ये और ये उसकी फ्रैक्शन हो जाएंगे। ठीक है, फ्रैक्शन हमने सीखा। फ्रैक्शन के बाद में जो हमारा नीचे डिनोमिनेटर होता है वो डिनोट्स टोटल पार्ट्स, और जो न्यूमरेटर होता है वो होता है हमारा पार्ट्स, या तो शेडेड पार्ट होता है, पार्ट्स टू बी शेडेड, या कुछ हमने ऑब्जेक्ट लिया है वो होता है। ठीक है, तो न्यूमरेटर इज पार्ट्स टू बी शेडेड, डिनोमिनेटर इज टोटल पार्ट्स। हमने इसके बाद सीखा प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जिसमें न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जिसमें डिनोमिनेटर जो होता है वो छोटा होता है न्यूमरेटर से। देखो अपोजिट होता है, प्रॉपर में छोटा होगा न्यूमरेटर, यहाँ पे छोटा होगा डिनोमिनेटर। और मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखी जाती है? एक होल होता है और ऐसे ये बीच में लिखा जाता है, बिल्कुल एग्जैक्टली मिडल में 2/3 के। ऐसे नहीं है, आप इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे, एग्जैक्टली बीच में नहीं लिखेंगे, कहीं ऊपर नीचे लिखा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन हमेशा बीच में लिखी जाती है। सो हमने आज ये सीखा फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा बेसिक। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।